جیسا کہ آپ نے اعلان سنا، میرے ذمے جو مقالے کا عنوان ہے شیر آبادی اور سلفیت ایک جائزہ، لیکن اس عنوان کو ہم نے تھوڑا سا اس کو پلٹ دیا ہے۔ پہلے شیر آبادی تھا اور بعد میں سلفیت تھا۔ میں نے اس کو جب ترتیب دیا تو سلفیت کو پہلے کیا اور شیر آبادی کو بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر آبادی تعارف کے تعلق سے آپ نے مفصل مقالہ سنا، اور شیر آبادی برادری کے تعلق سے اور بھی مختلف مقالے جات میں گفتگو آئیں گی۔ اس لیے میں نے سلفیت کو ترجیح دیتے ہوئے پہلا لفظ سلفیت اور شیر آبادی میں بعد میں رکھا۔ آئیے ہم نے اس مقالے کے تحت جو کچھ ہم نے تحریر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں انسان کو بالعموم اشرف و اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کیونکہ مابہر امتیاز کچھ خوبیاں اور خصوصیات ایسی ہیں جو صرف اور صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔ اسی لیے انہیں احکامات الہی کی سمع و طاعت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا انتظام انصراف فرمایا۔ نبیوں کی بعثت کا یہ سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی امت خیر امت ہے۔ جن خصائص و امتیازات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا تھا، ان کو نظر انداز کرنے اور ترک کرنے کی پاداش میں اپنی تاریخ کے چند مراحل طے کرنے کے بعد یہ امت ایک عظیم سیاسی انتشار کا شکار ہو گئی، جس نے آگے چل کر لا متناہی دینی اختلافات کی ایک مہم شکل اختیار کر لی۔ اسباب و عوامل کچھ بھی رہے ہوں، لیکن یہ ایک ناقابل انکار تلخ حقیقت ہے کہ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، جس کو تاریخ اسلامی میں فتنہ کبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، کے بعد نئے نئے افکار و نظریات کے حامل مختلف جماعتیں اور بے شمار فرقے نئے ناموں کے ساتھ وجود میں آنے شروع ہو گئے تھے، جن کا تسلسل ختم ہونے کے بجائے وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور تاہنوز جاری ہے۔ نتیجتاً امت آپس میں بری طرح الجھ گئی اور اپنی سیاسی توانائی و صلاحیت کو باہمی تصادم اور ٹکراؤ میں ظاہر کر دیا اور کر رہی ہے۔ اور یہ آپسی تصادم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی صحیح حدیث، جس میں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سألت ربی، اس کے بعد لمبی روایت تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ثلاث خصال فأعطانی منہن سنتین ومنعنی الثالثہ، سألته ألا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر علينا عدوا فأعطانيها، وسألته أن لا يلقي بيننا سيفا فمنعنيها۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2175 نمبر کی حدیث ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ چھوڑتا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ کی روشنی میں مشیت الہی کی بنا پر ناگزیر تھا، لیکن اس صورتحال میں بھی فرمان نبی لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1923 نمبر کی حدیث ہے کہ مصداق ہمیشہ اور ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہی ہے جس نے کسی قسم کے خارجی اثرات کو قبول کیے بغیر اپنے آپ کو عہد اول سے مضبوط رکھنے کی کوشش کی، کتاب و سنت سے اپنے تعلق اور رشتے کو مضبوط رکھتے ہوئے عقیدہ و عمل کو ہر طرح کی آمیزش سے محفوظ رکھا، اور اسی جماعت نے بعد میں بطور علامت اور دوسروں سے امتیازی حیثیت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے لیے لفظ سلف کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی طرف اپنی نسبت کی۔ محترم قارئین، میں نے اپنے اس مختصر سے مقالے کے اندر لفظ سلف اور اس کی طرف منسوب لفظ سلفی اور سلفیت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور واضح کرنے نیز اس کا شعری و تاریخی حیثیت سے تعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے لغت میں سلف کا معنی دیکھتے ہیں۔ سلف عربی زبان کے ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے، لغوی اعتبار سے لفظ سالف کی جمع ہے اور خود لفظ سلف کی جمع اسلاف آتی ہے۔ سلفا یسلفو سلفن و سلوفن کے معنی ہے گزرنا، آگے ہونا کہا جاتا ہے۔ سلف لہو عمل صالح، اس سے عمل صالح کا صدور پہلے ہو چکا۔ سلف القوم، وہ آگے ہو گیا۔
लिसानुल अरब में अल्लामा इब्न मंजूर रहमहुल्लाह सलफ की तशरीह करते हुए रहमतुल्लाह हैं कि सलफ उन गुजरे हुए आबा व अजदाद और क़राबादारों को कहा जाता है जो इल्म फजल और उम्र में फौकियत रखते हों। अल-मुअजमुल वसीत में भी सलफ के यही माना बयान किए गए हैं। मजीद एक माना ये भी बताया गया है कि हर वो अमल सालिह जिस इंसान ने पहले भेजा हो। अल्लामा इब्नुल असीर ने सलफ का माना बयान करते हुए लिखा है कि सलफ का इतलाक किसी भी फर्द के उन आबा व अजदाद और दीगर क़राबादारों पर होता है जो पहले वफात पा चुके हैं। इसीलिए ताबईन निज़ाम के अव्वलीन जमात को सलफ सालिह कहा जाता है। इन तमाम का ये हवाले जात हमने रकम किया है। इस मुख्तसर लफ्ज़ी तशरीह से अंदाज़ा हो गया कि लुगत में सलफ का इतलाक अमूमन गुजरे हुए आबा व अजदाद पुरखों पर होता है, हाँ वो नेक होने पर। इसी वजह से बस औक़ात उसके साथ लफ्ज़ सालिह का बतौर सिफत इजाफा किया जाता है ताकि गैर सालिह लोग इसके मफ़हूम से खारिज हो जाए। चुनांचे इसी लफ्ज़ सलफ की तरफ निस्बत करते हुए सलफ़ी मुस्तअमल है। अल-मुअजमुल वसीत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 444 में सलफ़ी उस शख्स को कहा जाता है जो शरिया अहकाम में किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करता है, इन दोनों के अलावा को हुज्जत नहीं मानता। सलफ इस्तिलाह में सलफ के इस्तिलाही मफ़हूम की तारीफ़ व तहदीद में उलमा की मुख्तलिफ आरा बयान की जाती है, लेकिन जुमला तारीफ़ात का खुलासा यही निकलता है कि सलफ का इतलाक़ इस्तिलाह में सहाबा किराम या सहाबा किराम व ताबईन या सहाबा व ताबईन के साथ अतबाए ताबईन और उन अइम्मा पर होता है जिनके इल्म व फज़्ल, इमामत और इत्तिबाए किताब व सुन्नत की शहादत दी गई है। ज़ैल में उलमा की बात आरा का जिक्र किया जाता है। नंबर 1, सलफ से मुराद सिर्फ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। मशहूर मगरिबी आलिम इब्न अबी ज़ैद अल-क़ैरवानी की किताब और रिसाला के बेशतर शारिहीन ने इसी कौल को इख्तियार किया है। नंबर 2, सलफ से मुराद सहाबा किराम और ताबईन इज़ाम हैं। अल्लामा ग़ज़ाली रहमहुल्लाह साहिब इह्या उलूमुद्दीन ने इसी कौल को इख्तियार किया है। मुतकल्लिमीन के मुकाबले मज़हब सलफ की हक़ानियत ये दूसरा कौल था। तीसरा कौल जो सबसे अहम है, सलफ से मुराद सहाबा किराम, ताबईन इज़ाम और अतबाए ताबईन हैं। यही इस्लाम की इब्तिदाई 3 सदियाँ जिनकी अफजलियत व बरतरी की शहादत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है एक रिवायत, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना है। रावी हज़रत इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद 2 सदियाँ जिक्र की या 3 सदियाँ जिक्र की। अल्लामा शौकानी वगैरह बल्कि अक्सर अहले इल्म ने इसी कौल को तरजीह दिया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ा तहरीर से पता चलता है कि आप भी इसी जानिब मैलान रखते हैं। बाद मुआसिर मुहक़्क़िक़ीन ने भी इसी कौल को इख्तियार किया है जिसमें सलफ की इब्तिदाई 3 सदियों के साथ खास माना गया है। चुनांचे एक मुहक़्क़िक़ डॉक्टर जलमीद लिखते हैं, मज़कूरा मसले में क़त्ई और सही मौक़िफ़ मेरे ख्याल में यह है कि सलफ की तहदीद में पहली 3 सदियों से हमें तजावुज़ नहीं करना चाहिए। मुतक़द्दिमीन के बारे में खाओ हम कितना है उसमें ध्यान रखें, लेकिन 3री सदी हिजरी के बाद रोनमा होने वाले आरा व अफ़कार को सलफ़ी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस्लामी सरमाया को 3री सदी के बाद से ही शदीद झटके लगे हैं और नफ्स परस्ती का बाजार गर्म हुआ है। लेकिन बाद दीगर मवाक़िफ़ अल्लामा इब्न तैमिया तबा ताबईन के बाद आने वाले बाद अइम्मा मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी को भी सलफ के मफ़हूम में शामिल माना है। मशहूर हम्बली आलिम अल्लामा इब्न रजब अल-मुतवफ़्फ़ा 795 हिजरी ने भी इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके अहद तक अइम्मा किराम को सलफ करार दिया है, जो बाद के लोगों के लिए क़ुदवा और नमूना की हैसियत रखते हैं। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक़ बिन राहबे रहमहुल्लाह या इन मौसूफ़ीन के अहद तक पाए जाने वाले उलमा ही मुतय्यन तौर पर ऐसे काबिल इक़्तिदा सलफ शुमार किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए अक़वाल के ज़माने में कलमबंद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन मौसूफ़ीन के बाद बेशुमार नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया था। इसलिए हर शख्स मुकम्मल तौर पर मोहतात रहना चाहिए। अब सवाल ये है क्या मफ़हूम सलफ की तहदीद में महज ज़माना के एतबार काफ़ी है? कुरून मुफ़स्सला से मुताल्लिक़ वारिद इमरान बिन हुसैन की हदीस को बुनियाद बनाकर अलल इतलाक़ पहली 3 सदियों को सलफ का नाम दिया जा सकता है? ये सवाल है। इस दौर में पाए जाने वाले तमाम अफराद को लायक इत्तिबा और काबिल इक़्तिदा सलफ कहा जा सकता है? इसका जवाब सुनिए। यकीनन बगैर किसी तरद्दुद के इसका जवाब नफी ही में होगा। यानी सलफ का मफ़हूम 2 मिनट में बात, यानी सलफ का मफ़हूम मुतय्यन करने के लिए महज सबक़त ज़मानी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ किताब और सुन्नत से मुवाफ़क़त ज़रूरी है। लिहाजा किसी ऐसे फ़र्द को सलफ में हरगिज़ शुमार
सलफ नहीं किया जाएगा जिसकी राय या मजहब किताब और सुन्नत से मुतसादिम या उसके मुखालिफ हो, खा वो साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन या ताबईन इज़ाम रहमुल्लाह के दरमियान ही उसकी ज़िंदगी गुजरी हो, लेकिन वो किताब और सुन्नत की अगर मुवाफ़क़त में नहीं है तो उसको सलफ नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि तारीख़ इस्लामी का अदना इल्म रखने वाले हर साहिब इल्म को बखूबी मालूम है कि कुरान मुफस्सला में भी बहुत से ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले बिदअती सरगना और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम और इस्लामी तालीमात को गुज़र पहुँचाने वाले मुनाफिकीन का वजूद रहा है, जिन्होंने आईना के मानद इस्लाम के साफ शफाफ चेहरे को दागदार बनाने की कोशिश की। लिहाजा हर पेश रव हमारे लिए काबिल इक्तिदा नहीं हो सकता, बल्कि क़ुदवा और नमूना वही सलफ हो सकते हैं जो मज़कूरा औसाफ के हामिल होंगे, यानी साहबे किराम ताबईन निज़ाम और अत्बाए ताबईन, जिन्होंने ऐसी मुबारक हद में ज़िंदगी गुजारी जिसकी अफजलियत बरतरी की शहादत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और साथ ही इन अइम्माए दीन को भी क़ुदवा और नमूना की हैसियत हासिल है, जिनका किताब और सुन्नत से ताल्लुक़ लोगों में मारूफ और जिनकी इमामत और दयानतदारी उम्मत के नज़दीक मुसल्लम है, जो खुद बिदअत के कामों से गुरेज करते और लोगों को बाज रखने की जद्दोजहद फरमाते थे। इस बिना पर हर वो शख्स जो अइम्माए मज़कूरीन के अकायद, फ़िक़्ह और उसूल को लाज़मी तौर पर अपनाता है, उसे अइम्माए सलफ़ की जानिब मंसूब किया जाएगा, ज़मानी या मकानी एतबार से कितनी ही दूरी और बुअद क्यों ना हो, कितनी ही दूर क्या क्यों ना हो, और हर वो शख्स जो उनकी मुखालफत करता है उसे सलफ की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, खा वो सलफ के दरमियान ही मौजूद रहा हो और ज़मानी व मकानी या मकानी एतबार से कोई बोध और दूरी ना रहा हो। सल्फियत और शेषाबादी, इस ताल्लुक से एक मिनट बाद खुलासा। सल्फियत और शेषाबादी, अल्हम्दुलिल्लाह शेषाबादी बिरादरी का मनहज और अकीदा वही है जो हदीस में वारिद कुरान मुफस्सला की 3 सदियों के लोगों का है, इसलिए वजह तौर पर ये बात कही जा सकती है कि शेषाबादी कम्युनिटी अकीदे के लिहाज से मिन हैसुल मजमू अहले हदीस और सलफी हैं और कौलो अमल में मनहज सलफ को इख्तियार करने में अपनी कामयाबी और फख्र महसूस करती है। खुलासा कलाम, सल्फियत बतौर एक मनहज फ़िक्र और मसलक के तमाम मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और मोहब्बत की दावत, तमाम अइम्माए किराम और मज़ाहिब फ़िक्र से इस्तिफ़ादा, तज़किया नफ्स व सुलूक, गैर मुस्लिमों के इस्लाम की दावत, अहले बिदअत व मासी के हिकमत के साथ इस्लाह, तौहीद व सुन्नत की इशाअत, कुरान व हदीस की खिदमत, इस्तेमाली क़ुव्वतों का मुकाबला, हर दौर में पैदा होने वाले फितनों के इलाक़मा करने और हमेशा इज्तिहाद और तजदीद की दावत से इबारत है। दुनिया की कोई सलफ़ी तंजीम अगर इन मैदानों में कोताही करती है, दुनिया की कोई सलफ़ी तंजीम अगर इन मज़कूरा मैदानों में कोताही करती है या इन बुनियादी मकासद से दूर हो जाती है और अपने फ़राइज़ सही तौर पर अंजाम नहीं देती, तो उसे नसीहत की जाए और अल्लाह से दुआ की जाए, मगर उसके खिलाफ बगावत से कुछ हासिल नहीं। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।